Okay. In the meanwhile, please start writing your roll number and name as usual. Okay. I will just share my screen. Okay, Sneha, is it visible? Yes, sir. Okay, fine, fine. Um, I'm going in this um studio and let's create a new file, abstract demo.java. Let's create this file. Now I'm creating this abstract class. Now what is this abstract class means? Okay, let's 1 second. Okay, let 1 second. Let me put it in widescreen so that you people will come to know. Um, okay, see now. Let's say there is a class called as abstract. Okay, now what is the meaning of abstract class? Because now we have seen the meaning of class in Java as well as in C++. Okay, so a class, what is meaning of class? Class is nothing but a static entity. Static entity. Static entity. Okay, once you create an object, once you create an object of a class, then this is nothing but a dynamic entity. Okay, this is dynamic, whereas this is static. Okay, so it makes sense now. Now let's say in a class static entity, what is there inside it? So we are having something called as members. What are the members? Members can be variables. I'm having the variable. I can have methods. So this thing we have seen it. So you declare a class in Java or C++. It doesn't make any sense. Difference. Sorry, it doesn't make any difference. So you go on creating the variables. You go on creating the methods. So like this, you go on defining the classes. So there is one more class. Let's say this class A, this class B. Now there is something called as a relationship between the two classes. Relationship between the two classes. This is something called as mapping. Mapping cardinality. Cardinality. मैपिंग कार्डिनलिटी. मैपिंग कार्डिनलिटी का मतलब क्या मालूम है? वन क्लास, how it is related to the another class. So that is, there is a relationship 1:1, right? So let us say class A is nothing but a teacher, class B is nothing but a student. So one teacher teaches one student, so 1:1. So the next is 1:n, one teacher and many students, right? The next one is what? Many teachers and one students. It's a private coaching class, you can say, right? One, many teachers and one students, and there is many teachers and many students. So this is something like a college. We have got different teachers for different subjects, right? But many teachers and many students. Many teachers, one student. One teacher, many students, and one teacher and one students. So how many cardinal mapping there are? There are present four. So there are four mapping cardinalities. So that means you take any two classes, class A and class B, then class C, class D, whatever classes are there, right? Each class will have the relationship between the another class, and we will have any one type of this mapping cardinality. It may be between A and C, it may be between A and D, it may be between B and C, B and D, C and D, right? Anything.
So only these combinations are there, right? So each one has got four. This has four, this has four, this has four, this has four, this has four. And what are the four? These are the fours. 1 is to 1, 1 is to n is to 1, and n is to n. So we have to define which class is having 1 is to 1 or 1 is to n or n is to 1 or n is to n. What type of mapping, cardinality mapping must be there, or what type of inheritance must be there between these two. Now this is not, I am again talking about the different types of inheritance. I am talking about only single inheritance, और सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर भी ये चार मैपिंग कार्डिनलिटी है, राइट. इट में हैपन कि भाई ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, यानी ये मल्टी लेवल हो गया. तो मल्टी लेवल हो गया, होने दो. मल्टीपल हो गया, होने दो. हाइब्रिड हो गया इनहेरिटेंस, तो भी होने दो. वी आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू क्लास रिलेशनशिप. तो ये दो क्लास मल्टी लेवल में आते हैं, मल्टीपल में आते हैं, क्या हाइब्रिड में आते हैं, क्या सिंगल में ही आते हैं, दैट वी आर नॉट नोइंग. व्हाट वी आर नोइंग, ये दोनों क्लास का रिलेशनशिप क्या है, राइट. सो are you going to discuss like this, for example one teacher and many students, so 1:n है, इसके लिए one teacher, जो teacher class A is a base class and student class is a sub class. Are you going to define like this, or one teacher or many teachers and one student? So इसमें आप उल्टा करोगे क्या कि स्टूडेंट को बेस क्लास और ये इसको, so you will not say like this, right? You will not think on this angle, right? You will not think on this angle, right? But this mapping cardinality is going to do these things for us, right? 1:n है क्या, वो हम लोग को पता करने का. वी विल नॉट गो लाइक स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट को सब क्लास ही है, ऐसा नहीं है. सब क्लास एंड क्लास का डेफिनेशन ही अलग है. व्हाट इज क्लास? क्लास इज द स्टैटिक एंटिटी है वो. हाउ इट इज बिहेविंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बिहेविंग का मतलब है कि ये जो क्लास ए का ए को मैं अगर बेस क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट रहने दो, टीचर रहने दो, क्या कुछ भी रहने दो, आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, राइट. और जो क्लास को मैं डिराइव्ड क्लास, और हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सब क्लास में किसको बना रहा हूँ और बेस क्लास में किसको बना रहा हूँ, राइट. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन इफ दिस डिराइव्ड क्लास डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास. बेस क्लास के प्रॉपर्टी यानी क्या, उसके वेरिएबल, उसके मेथड. अगर ये क्लास को चाहिए, दिस क्लास मस्ट हैव दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस बेस क्लास, बिकॉज अल्टीमेटली बेस क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास, और डिराइव्ड और सब क्लास किसको बोलते हैं, चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास. अगर वो चाइल्ड को प्रॉपर्टी चाहिए क्या, पेरेंट का प्रॉपर्टी चाहिए क्या, तो उसको डिराइव्ड क्लास बनाओ वो बेस क्लास का, राइट. अगर वो चाइल्ड क्लास वो अपने आप वो पेरेंट ही है, सपोज, बिकॉज दैट चाइल्ड क्लास इज नॉट इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द वन ऑफ द क्लास. ये चाइल्ड क्लास है, वो किसका भी इनहेरिट प्रॉपर्टी कर ही नहीं रहा है और उसको चाहिए ही नहीं. अगर चाहिए नहीं तो मैं वो क्लास को मैं डिराइव्ड क्लास बनाऊं क्यों? Why I have to create that class as a derived class? Why I have to create that class as child class? Because that class is not accessing any kind of property. उसको चाहिए नहीं, राइट. अभी चाहिए नहीं, ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो क्लास है, राइट. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनारियो, क्लास टीचर and class student. नाउ इसके अंदर के प्रॉपर्टीज, इसके अंदर के प्रॉपर्टीज. नाउ कौन सा स्टूडेंट, राइट, और इफ स्टूडेंट वांट्स द बुक्स, द मटेरियल और सम प्रॉपर्टीज from the teacher, then that in that
सेंस द चाइल्ड क्लास कौन हो गया? स्टूडेंट। पेरेंट क्लास कौन हो गया? टीचर। बट इट मे हैपन कि भाई ये टीचर है, ये टीचर को लैब मैनुअल किससे, लैब और मैनुअल किससे चाहिए? स्टूडेंट से चाहिए। नाउ इन दिस सेंस स्टूडेंट का जो प्रॉपर्टी है, राइट, वो टीचर को चाहिए। Teacher wants the roll number of the student. Teacher want the something, the what are the parameters and methods of the student over here. स्टूडेंट कैसे काम करता है, टीचर को चाहिए। स्टूडेंट कैसे हार्डवर्क करता है, टीचर को चाहिए। स्टूडेंट को प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, टीचर को चाहिए। स्टूडेंट एल्यूमिना होके किधर एमएस करने के लिए जा रहा है क्या, टीचर को चाहिए। दैट मीन्स व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टूडेंट, दैट इफ टीचर इज एक्सेसिंग, तो उसका मतलब हो गया टीचर बिकम्स नाउ व्हाट? चाइल्ड क्लास, and your student becomes a base class or parent class. In this particular scenario, the teacher is your parent class and student is your child class. So आप ये नाम से मत जाओ कि टीचर है तो पेरेंट है, स्टूडेंट है तो चाइल्ड है, स्टूडेंट का और कोई यंगर ब्रदर है तो वो चाइल्ड है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज नॉट लाइक दिस, यू डू नॉट गो डिपेंडिंग अपॉन योर एज वाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर्स कि कौन सा क्लास, कौन से पैरामीटर। इट में हैपन कि भाई एक टाइम पे टीचर को चाहिए, दूसरे टाइम पे टीचर का इसको चाहिए, यानी ये भी चाहिए इधर से और इधर से भी चाहिए, तो बोथ वेज इज देयर। अभी दोनों को दोनों का प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं किसको इसको पेरेंट बनाऊं कि इसको चाइल्ड बनाऊं? तो भाई ये भी पेरेंट हो गया और ये भी पेरेंट हो गया ना, फिर तो इसको भी पेरेंट ही बनाना, इसको भी पेरेंट बना। और देयर इज अ थर्ड क्लास, एक तीसरा क्लास आएगा, उसके अंदर टीचर एंड स्टूडेंट का दोनों का प्रॉपर्टी आएगा, तो ये बन गया अपना चाइल्ड क्लास। और दिस इज चाइल्ड क्लास, वो इसका भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, इसका भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, और ये जो क्लास है वो दोनों का प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। राइट, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी? दो पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया आदित्य? हेलो। मल्टीपल। वेरी गुड। तो ये मल्टीपल हो गया, राइट। तो अगेन वी आर सेइंग, हम लोग मल्टीपल यूज कर रहे हैं, मल्टी लेवल यूज कर रहे हैं क्या, सिंगल कर मल्टीपल। रहे हैं क्या? नहीं, दिस इज मल्टीपल ओनली ना। मल्टीपल का मतलब क्या है? दो पेरेंट क्लास है और मोर देन वन पेरेंट, मोर देन वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड, राइट। यानी दो रहने दो, तीन रहने दो, चार रहने दो, तो पेरेंट क्लास नंबर ऑफ क्लासेस मल्टीपल, बट मेनी 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 पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, फाइन। तो मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हो गया। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मल्टीपल है क्या, मल्टी लेवल है क्या, हाइब्रिड है क्या, सिंगल है? इससे कौन सा क्लास पेरेंट होता है वो, हाँ, कौन सा क्लास पेरेंट होता है वो टेर नहीं होता है, ऐसा मुझे कहने का है। सो यूर विच क्लास इज पेरेंट एंड विच क्लास इज सब क्लास, चाइल्ड कौन सा है और पेरेंट कौन सा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूर दिस लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, नो। पहले हम लोग को क्लासेस, सी जब भी हम लोग को स्टेटमेंट मिलता है, एक दो सेकंड ना, लेट मी टेक अ ब्रेक ऑफ, लेट मी टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। ओके, एक 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ।
Sir, you are on mute.
Hello. Sorry, guys. So I'm. Uh, I have taken a break because in the morning I had a lecture. So that lecture I finished, and just now I took a break for just coffee and discussion with my colleague. Okay. Again, come back to this situation where I was just talking about the. Am I audible? Sneha and Aditya. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So I was talking about the this parent class, okay, and child class. So this was our discussion. So let us complete that, and then I will jump to the abstract class. Means why I have to create an abstract class. That's why this is what a theory what we are studying. So I talk about there is something called as mapping cardinality, right? One is to one, one is to many is to one, and many is to many. So this is the mapping cardinality between these two classes, and to whom you have to treat as the parent and to whom you have to treat as a child. It depends upon what the property. The property. इसका भी खुद का property, इसका भी property है. Now this class wants this property, right? Then you create a child class of this. Suppose this class wants a property of this, then you create a child class of this, and then you can say this class also want this property, this class also want this property. तो ये इसको भी चाहिए, इसका इसको भी चाहिए. So let's create a one more class, right? वो दोनों का रिलेशनशिप रहेगा. पीसी नाम का दूसरा क्लास रहेगा. ये क्लास कर क्या करेगा, इसका भी प्रॉपर्टी लेगा, इसका भी प्रॉपर्टी लेगा, राइट? नो दिस इज अ सिंगल इनहेरिटर, दिस इज अ मल्टी लेवल. सो वो लेवल कौन सा लेवल का इनहेरिटेंस आप अचीव कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज नहीं करने का है. द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू दैट अ टीचर teaches one subject to many student. So this is the statement, is given to you. One teacher or a teacher teaches subject to multiple students. तो ये स्टेटमेंट से मेरे को मालूम पड़ता है कि भाई ये 1 to n मैपिंग कार्डिनलिटी है, राइट? उसके बाद में फिर मैं चेक करूंगा कि भाई अगर टीचर सब्जेक्ट सिखा रहा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है. अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर ऐसा है, अ टीचर gives the notes to student. यानी ये स्टूडेंट को ये टीचर का नोट्स चाहिए, राइट? सो इसका प्रॉपर्टी इसको चाहिए, इसका प्रॉपर्टी उसको चाहिए, तो फिर इसको पेरेंट क्लास बनाओ, इसको सब क्लास बनाओ, लाइक दिस. सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सिनारियो. ये सिनारियो बहुत मायने करता है कि सिनारियो क्या है, राइट? सिनारियो एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा. स्टूडेंट्स राइट्स अ बुक, suppose teacher writes a book, suppose, let's say, right? Teacher needs the material from a student, तो ये बात में क्या हो गया कि स्टूडेंट का मटेरियल टीचर को चाहिए. क्यों चाहिए? उसको बुक लिखने का है. सो जो उसने पढ़ाया था पहले, जो नोट्स इसको दिया था, वो नोट्स उसको वापस चाहिए. उसको किससे चाहिए? स्टूडेंट से चाहिए. तो स्टूडेंट का जो प्रॉपर्टी है वो इसको चाहिए, तो स्टूडेंट बन गया पेरेंट ना फिर, राइट? ऐसा है. तो ये कौन सा सिनारियो है, सिनारियो क्या डिस्क्राइब करता है, उसके हिसाब से आपको पेरेंट और चाइल्ड क्लास से खेलने का है. सो इन दिस क्या होता है कि जब भी सिनारियो आपको दिया जाता है, राइट? टीचर, स्टूडेंट, बुक, तो आप क्या करते हो? एक एक क्लास बना के रखते हो, राइट? टीचर है, स्टूडेंट है, बुक है, राइट? टीचर है, स्टूडेंट है, बुक है, and now one by one line you make, right? Teacher writes a book, right? So ये जो बुक है, right, ये कौन लिख रहा है? टीचर का प्रॉपर्टी है, राइट? सो बुक इज अ सब क्लास ऑफ टीचर. टीचर नीड्स अ मटेरियल फ्रॉम अ स्टूडेंट. सो इससे इसका प्रॉपर्टी इसको चाहिए, राइट? इसका प्रॉपर्टी इसको चाहिए, इसका प्रॉपर्टी इसको चाहिए. तो ये मल्टी लेवल का जैसा सिनेरियो हो गया. Now if there is one more this thing, right? Publisher
पब्लिशर यानी जो पब्लिश करने वाला जो बुक है, पब्लिशर नीड्स पब्लिशर नीड्स राइट अ बुक or a material from a teacher, so there will be one more class called as publisher, right? तो पब्लिशर यानी इसका मटेरियल इसको भी चाहिए ना, यानी वन बेस क्लास, ये एक सब क्लास हो गया, ये दूसरा सब क्लास हो गया, राइट? सो दिस इज सब क्लास वन, सब क्लास टू, दिस इज पेरेंट क्लास वन और पेरेंट क्लास वन, दिस इज पेरेंट क्लास टू। पेरेंट है, टीचर का पेरेंट ये है, राइट? ओके, बुक एंड पब्लिशर का पेरेंट ये है, you got it? So this is something called as what you have to create, you have to draw something called as a class diagram. क्लास डायग्राम। और इधर आपको मालूम पड़ेगा ये क्या है, वन एस टू मेनी, ये क्या है, दिस इज एन एस टू वन, यानी टीचर वांट्स अ मटेरियल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। एन एस टू वन यानी क्या, एक्चुअली एन ये है और वन ये है, बाय द वे, बिकॉज एरो इज लाइक दिस, एरो इज लाइक दिस, एरो ये साइड में, तो वन आई एम टॉकिंग अबाउट एन इज टू वन, एन यानी ये है, वन यानी ए है, राइट? इट इज लाइक दिस, राइट? ऐसा है। सो दिस इज समथिंग लाइक यू नो द क्लास डायग्राम यू हैव टू मेक। सो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लोग बोला जाता है देर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वन इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, generalization, and another one is called as specialization. आई थिंक ये मैंने आपको है ना एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बोला था। नो, व्हाट इज जनरलाइजेशन यानी क्या मालूम है, देर आर क्लासेस, देर आर मल्टीपल क्लासेस, राइट? सो इसका जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी, नो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस इज डॉग, दिस इज कैट, दिस इज लेट्स से एलिफेंट, एनिमल है, एनिमल्स है, एनिमल क्लासेस, राइट? और उसके क्या है, हियर लेट्स से नंबर ऑफ लेग्स, सबको लेग रहते हैं, तो इसका भी लेग है, इसका भी लेग है, इसका भी लेग है, राइट? देन ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए, दीज आर द वेरिएबल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड, लेट्स से बार्क, राइट? इसका बार्किंग मेथड अलग है, इसका बार्किंग अलग है, इसका बार्किंग अलग है, लेकिन लेट्स से आई वांट टू क्रिएट और आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर एनिमल क्लास, एनिमल के लिए मेरे को प्रोजेक्ट बनाने का है, और मेरे लिए मेरे पास खाली 3 एनिमल है, कैट, डॉग और एलिफेंट, राइट? तो मैं क्या करेगा, इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ लेग, राइट? लेग, आई, ईयर, जो भी है, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, एंड द कॉमन मेथड्स, कॉमन मेथड यानी क्या, बार्क, और लेट्स से रन, इसका वे ऑफ रनिंग अलग है, इसका वे ऑफ रनिंग अलग है, इसका लेट ब्रीथ, इसका ब्रीदिंग इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, let's talk about like this. Now in this particular case generalization, what I'm taking, I am taking the common properties of all these classes and create a one class, create a parent class, create a parent class. ये parent class मैंने क्यों बनाया, because this parent class will have the property of common number of legs, bark, let's say these are the two properties, number of legs and bark, ये कॉमन प्रॉपर्टी है किसमें, पेरेंट क्लास में। नाउ दिस बार्क मेथड में टेक्निकलिटी, इन टेक्निकल मैनर, एम आई गोइंग टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर, नो, राइट? तो इधर मेरा ये अनडिफाइंड मेथड आएगा, क्या आएगा, अनडिफाइंड, मैं इधर डिफाइन नहीं करूंगा। नंबर ऑफ लेग्स प्रॉपर्टी, राइट? ये कितना है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनिमल, इट डिपेंड्स अपॉन द एनिमल। नाउ फ्लूक में ये तीनों एनिमल को 4-4 लेंगे, दैट इज फाइन, कंसिडर डिफरेंट, लेट्स से दूसरा एक एनिमल लेते हैं, राइट? और टेक एनी वन ऑफ द एनिमल, यू नो, वेयर द नंबर ऑफ लेग्स इज डिफरेंट, forget about that, just I am taking an example, but I am not knowing how many legs are there of to which animal you are talking about. I am not knowing how it will bark, it depends upon the animal what you are talking about, right? But I create a common class or base class, parent class,
which will have the common properties of all these things. So I am going from the specialized class to generalized class. So this thing is called as generalization. Generalization का मतलब क्या है? Take a common property and create a base class. Let's take a one more example. The idea will get clear to you. I am a staff. I am a teaching staff. uh, we have got non-teaching staff, we have got peon, we have got watchman. Now I'm talking about a college scenario, right? I'm talking, let's say I may be principal, right, like this, or I may be a management, right? So हर एक के पास क्या है? हर एक के पास नंबर ऑफ, हर एक के पास क्या है? डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, उनका सैलरी, डेजिग्नेशन सैलरी, और ये सब एट्रीब्यूट्स क्या है? कॉमन है, कॉमन एट्रीब्यूट्स है, राइट? एंड द वर्क, वर्क, स्टाफ को वर्क क्या है? लेक्चर लेने का, नॉन टीचिंग को वर्क क्या है? अलग है, प्यून को वर्क क्या है? अलग है, वॉचमैन को वर्क क्या है? अलग है, हर एक का वर्क, बट दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ क्लास कॉल्ड एज एम्प्लॉय, कॉल्ड एज एम्प्लॉय, राइट? सो एम्प्लॉय क्लास क्या है? उसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज है, which are undefined, which are undefined. So this is something called as generalization. Generalization यानी picking up the common properties of subclass and create one more base class, create one more base class, which is called as what? Generalization. Now, what is exactly opposite is a specialization. Who is employee? Employee is a specialized, is a staff. Employee is a non-teaching staff. Employee is a peon. Employee is a watchman. Employee is a principal. Employee can be a management people. Anything, you know, anybody. So employee कौन है? So specialized. So if I'm talking about the specialization, then I'm talking about creating the child classes. If I'm talking about the generalization, I'm talking about the parent classes. बस ये important है. तो अभी तक पूरा कहने का मतलब क्या हो गया? What is the summary of everything? Summary of everything is what? Generalization and specialization. किसको specialized class बनाने का है, किसको parent class बनाने का है. Now the class where we have got the variables method which are undefined. मुझे मालूम नहीं है work. If I am saying employee work, कैसे काम करेगा एम्प्लॉय? तो डिपेंड्स अपॉन विच एम्प्लॉय यू आर टॉकिंग अबाउट ना. एम्प्लॉय अगर वो नॉन टीचिंग रहेगा तो वो थोड़ी सिखाएगा. एम्प्लॉय अगर प्यून रहेगा वो थोड़ी लेक्चर लेगा. और एम्प्लॉय अगर स्टाफ रहेगा वो थोड़ी झाड़ू मारेगा. एम्प्लॉय अगर द नॉन टीचिंग रहेगा वो थोड़ी वॉचमैन का जॉब करेगा. सो एम्प्लॉय इज व्हाट? एम्प्लॉय इज अ बेस क्लास. वो बोलता है कि भाई मैं कॉमन है, आई हैव गॉट कॉमन प्रॉपर्टीज, आई हैव गॉट कॉमन थिंग्स, राइट? राइट, मेरे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स है, कॉमन मेथड्स है, right? So I am a class which is generalized class, which tells about the scenario, which tells about the common things in the whole project. पूरे प्रोजेक्ट में मेरा, मैं जो क्लास बना रहा हूँ वो कॉमन है, राइट? दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ए जनरलाइजेशन, राइट? एंड हु इज स्पेशलाइज्ड, राइट? तो इसका जो मेथड है, जैसे वर्क मेथड है, आई एम गोइंग टू ओवरराइड द मेथड ओवर हियर, आई एम गोइंग टू ओवरराइड द प्रॉपर्टीज ओवर हियर. ओवरराइड करूंगा, ओवरराइड कहने क्या? मैंने ये डिफाइन करूंगा, ये जो अनडिफाइंड है उसको मैं इधर डिफाइन करूंगा, इसको मैं इधर डिफाइन करूंगा, इधर डिफाइन करूंगा, इधर डिफाइन करूंगा. यानी हर एक सब क्लास को, हर एक चाइल्ड क्लास में मैं कॉमन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूंगा. सो दैट थिंग इज कॉल्ड ए स्पेशलाइजेशन, राइट? तो कौन सा भी दुनिया में प्रोजेक्ट लिया, कौन सा भी दुनिया में रियल टाइम प्रोजेक्ट, अभी इंडस्ट्री में जितने रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, तो पहला बात ऐसा है कि भाई हाउ मेनी क्लासेस आर देयर. नाउ दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल आई एम टेलिंग अबाउट. इन रियल टाइम एग्जाम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस. और ये जो क्लास है, जो कॉमन क्लास हम लोग बना रहे हैं और जिधर अनडिफाइंड रहता है, यही क्लास को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट. तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट में? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इमेजिनरी. इमेजिनरी, इमेजिन करता हूं मैं. मेरे पास वर्क तो मेथड होना ही चाहिए. वर्क क्या है? इमेजिनरी है. नाउ इफ दैट एम्प्लॉय इज स्टाफ, देन हाउ ही विल वर्क, इट डिपेंड्स. सो आई हैव टू ओवरराइड दैट.
राइट. सो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी. आर यू गेटिंग? लेट्स क्रिएट दिस एंड लेट्स सी दिस कि कैसे होता है. तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट डेमो है. लेट्स से दिस एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास आई एम हैविंग, लेट्स से जैसे मैंने बोला था, इंट नंबर ऑफ लेग्स, right? I'm not knowing what are the how many number of legs are there. Then let's say I will write here abstract is a keyword. By the way, abstract is a keyword, and in this abstract is also keyword. So I have to write a abstract class abstract demo, right? So ये भी रहने दो. abstract demo में हम लोग main method रखते हैं abstract class animal. और abstract word क्या है? bark. I am not knowing how it is going to bark. Now let's say my class is dog, which extends animal class. It makes sense, right? And over here now I will say, obviously this abstract I will write here public because I have to access outside this, otherwise it becomes a local for this. Now I will write here void bark. आई विल ओवरराइड दिस. ओवरराइड, हाँ, ओवरलोड नहीं. मैं उसका पैरामीटर वो सब चेंज नहीं करूंगा, ये रिटर्न टाइप भी चेंज नहीं करूंगा, बट द बॉडी ऑफ द मेथड आई एम ओवरराइडिंग. नाउ ओवर हियर आई विल राइट system dot out dot println. Now let's say dog है तो बाव बाव एनीथिंग. हाँ, इट्स जस्ट अ डमी. यू विल से अरे बाव बाव आवाज आएगा क्या? आवाज नहीं आएगा. सिंपल एग्जांपल है वो. Let's say now my class is, let's say, cat, which also extends animal, right? So it also makes sense. Again also he will also say my bark is there, and then it will say public void main, and over here I will say meow meow, meow meow, anything. हाँ, कुछ भी लिखता हूँ मैं ऐसा randomly. Now let's say इधर नंबर ऑफ लेग्स ना, और कुछ तो पैरामीटर बोलो जरा. आदित्य कुठलं तरी वेगळं पॅरामीटर सांग की जिकडे डिफर होईल काहीतरी. नेम लिहितो. चल नेम लिहा. हा चालेल सर. नेम किंवा कुठलाही आय डी. आपण स्ट्रिंग पण घेऊ शकतो. नेम लिहूया. नेम इज द सेम. आय थिंक नेम हे आलं. नाही 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 नेम. ठीक आहे, स्ट्रिंग नेम घेऊया. आणि लेट्स से ओव्हर हियर लेट्स से नेम इक्वल टू, हां, याचं नाव लिहूया टॉमी. काहीतरी असंच देतो. हां, हे असंच आहे. देन ओव्हर हियर जस्ट से प्लस नेम. ओके. सो ओव्हर हियर आय हॅव टू ओव्हरराइड दिस नेम. ॲक्च्युली हा नाम पण आपल्याला इकडे लिहावं लागेल ना. इट्स अ पब्लिक, राईट? नाही तर येस परत सर. तो आरडाओरडा करेल. सो राईट, अदरवाइज इट विल नॉट टेक इट ओव्हर हियर. नेम टॉमी आणि इधर काय ते त्याला टॉम अँड जेरीच लिहूया मोरो. टॉम अँड जेरी. And over here I have to just see that whether it is going to print it over here or no, right? And now I am having a class called as abstract demo. अभी ये मेरा क्लास है, राइट? एब्स्ट्रैक्ट डेमो में क्या करेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अपना मेन मेथड तो आना ही चाहिए ना इधर. ओवर हियर. ओके. नाउ ये we know this, right? In Java, how many whatever classes you write, okay, ultimately you should have your own main class, right? जिधर आपका actually main class रहेगा. Now let's create a object of one by one. Dog d equal to new dog. Let's create a class, and now you call a method bark. Now let's say cat c equal to new cat, and then say c dot bark. Now the meaning is like this. Now
This bark method, see the name of method is same, right? This is abstract class. So ये base class है. Dog is a child class, cat is a child class. Now I have created this child class object. मैं object create कर रहा हूँ, right? Object create करने के बाद में I am calling this bark. तो ये जाएगा कैसे? हाँ, जस्ट पहले हम लोग इसको कंपाइल करते हैं. लेट्स कंपाइल दिस abstract demo.java. Let's see this. Identifier expected. अरे वाटलंच मला एक नेम नाही आहे ॲक्च्युली. आय हॅव टू राईट नेम और shall I write string S capital या 2. Is it actually this name is there ना? नेम जो है ना, आई थिंक दिस नेम इज अ कीवर्ड. कीवर्ड आहे म्हणून तो आडावडा करतोय बहुतेक. लेट्स चेक दिस. नो, व्हॉट इज देअर? why it is not giving that? String is correct. Now shall I write here string public like this? No. नेम कुछ तो गडबड हो रहा है. सर नेम मध्ये एरर दाखवते ना. काय म्हणतो? एनएम मध्ये एरर सांगते ना ती त्या लाईन मध्ये. इकडे 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 हे पण चेंज नाही केलं. नाही पण तरी सुद्धा तो वरचा एरर आहे, इकडचा नाही आहे. सी वरचा एरर आहे, तो इकडचा नाही आहे. नेम, आर यू गोइंग टू इनिशियलाइज दिस? देन विल इट फाइन? नो. देन व्हाट? पब्लिक. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. Oh, problem is this. What is the problem? सर मला पण हाच प्रॉब्लेम येत होता. ठीक आहे, आपण जरा थोडंसं हे बघूया. बट आय थिंक हे परत बघूया आपण. लेट्स से आय एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग्स. असं करून जस्ट आपण पहिले हे सॉल्व करूया अँड देन लेट्स सी इट ओव्हर हिअर. ओके, हा तर येईलच. करेक्ट. ओ, आता परत इकडे कॅनॉट ओव्हरराइड bark in animal. अरे ये क्या प्रॉब्लम आ गया? Why it is putting like this? Abstract animal काय झालं पाहिजे? Bark is there. So will it be like this? No. Privileges नाही आहेत ना, was public. So is it going to be there like this? Okay. आपण पब्लिक करावं लागेल बहुतेक, because it is not accessing that. Okay. But it should not be like this. This is static. So if I'm calling static to non-static, then is it giving any error? I think public void. So if I don't write public, then what is going to happen? I don't want public. It by default it should take public. Let's find it out. Yes. So see, please, see, I have make one changes. Here I have written, right, public abstract public word bark, right? Now what happen? If I am making it as a public, right? So that this method is not by default public, but that's explicitly I have written the public explicitly. Now once I have written the explicit keyword public, then over here also I have to write explicit.
That is what is the error, right? So that's why it is giving the error. So let's say public. Yes, see, now it gives me this thing, bow bow and meow meow. Now actually what happened, actually what happened, once I'm calling this method dog dot bark, so this will go over here. This will indirectly go to the abstract class. This will indirectly go to the abstract class and we'll check whether this method is abstract or no, because this class extends animal, right? And again it will come back, right? So whatever method you are overriding it in different subclasses, it will check its unique property यानी it is abstract, right? Abstract तो है ही, यूनिक प्रॉपर्टी यानी उसका सिंटैक्स क्या है, टेम्पलेट क्या है, दिस थिंग इज गोइंग टू चेक, राइट? नाउ ओवर हियर आई हैव टू चेक दिस, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है ये मैं चेक करने वाला हूँ. व्हाट एरर इज this? Is a simple, actually it should not take any error. Oh sorry, abstract demo.java. Why it is keeping this error? Will I say abstract string and let's don't write here? Is it going to be there like this? No. What is the identifier expected? काय झालेलं बरं, असा काय एरर देतोय? लेट्स फाइंड इट आउट इन गूगल करूया. लेट्स गूगल इट. abstract class in Java. काहीतरी abstract आणि नॉन abstract मध्ये काहीतरी फरक देतोय तो. If my class is itself abstract, then it not be like that ki, so even one second, let me check this, right? Even I can override the method over here also, or I can define the method over here also. Or let's say it is a method, and this I can say system.out.println, and I will say both are non-veg, like that, right? And can I define this like this? वो छोड़ो, ये this, forget this thing. Yes. Okay. What happened? See, I may have this bark method which is undefined. So this is undefined method, and this is what? This is defined method, right? But I can put this, right? Even I can call it over here. Even I can call it in the subclass. सबक्लास में कॉल कर सकता हूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव टू क्रिएट, और लेट्स से इधर भी नहीं, लेट्स कॉल इट फ्रॉम दिस d.it. लेट्स कॉल इट फ्रॉम दिस वन मेथड. एक ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं. यस. सो बोथ आर नॉन वेज, सो आई एम गेटिंग दिस ऑल्सो. सो याच्यामध्ये पण काहीच प्रॉब्लेम वाटत नाहीये, हे पण एकदम व्यवस्थित चालू आहे आपलं. सी, ऑल ऑफ यू पीपल आर गेटिंग व्हॉट आय एम डुईंग. आदित्य, कुशल बिशल, काय समजते का मी काय करतोय ते? हॅलो. येस सर, समजतो. येस सर. हां. सो आय एम जस्ट चेकिंग, वाय एम गेटिंग एरर इन दिस व्हेरिएबल मध्ये काय एरर आहे? बिकॉज सी, दिस इज नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट ना. हिअर आय हॅव नॉट डिक्लेअर्ड द नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट, राईट? इकडे मी ॲब्स्ट्रॅक्ट डिक्लेअर केलं नाहीये. वाय? बिकॉज इट इज डिफाइंड मेथड. आय एम डिफाइनिंग इट, दॅट्स वाय. सो आय कॅन कॉल इट बाय युझिंग एनी ऑब्जेक्ट, राईट? जे डॉगचा ऑब्जेक्ट बनवला, याचा ऑब्जेक्ट बनवला तरी सुद्धा तो कॉल तर होणारच आहे. सी, आय एम गेटिंग दिस.
I can call this using this, right? हे बघा, सी बोथ आर नॉन, सो डी एंड सी, सो दोनों दोनों सब क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और दोनों सब क्लास का ऑब्जेक्ट से मैं वो मेथड बुला रहा हूँ विच इज इन द सब, विच इज इन द बेस क्लास में वो डिफाइंड है. दैट इज फाइन, सो आई कैन कॉल इट. नो, so I'm just trying, why it is तर पब्लिक स्ट्रिंग म्हणून एक क्लास बनवा ना. काय म्हणतोस? पब्लिक स्ट्रिंग म्हणून क्लास त्याच्यात हे करायला, नेम रन करायला. पब्लिक, अच्छा पब्लिक स्ट्रिंग, ओके ओके. नाही पण आपण मगाशी तेच तर केलेलं ना, पब्लिक स्ट्रिंग एनएम. मगाशी काय केलं, हेच तर केलं ना. Now over here will it saying that you cannot name is nn, you cannot override that, is it like this? No, आपण ओव्हरराईड केलं म्हणून तो त्याने एरर दिला का? नाही, असं काय नाही आहे. सी, इट शुड नॉट बी लाईक दिस. असं नाही आलं पाहिजे ॲक्च्युली. ओके, इट्स अ स्ट्रिंग राईट. म्युटेबल आणि इम्युटेबल चालतं, दोन्ही चालतं, असं काही नाही आहे. and this is nn, so I am defining it. Cannot find symbol. फक्त याचा प्रॉब्लेम आला आपल्याला, व्हेरिएबलचा प्रॉब्लेम आला. अदरवाइज बघ आता प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. वाय इट इज सो लाईक दिस? yes, nn it is printing, so it is not giving me the chance to override it. Override ला काय प्रॉब्लेम झाला त्याला? येस, आता त्याने दिलं बरोबर. नाउ वाय आय कॅनॉट ओव्हरराईड दिस? ओव्हरराईड तर करू शकतो मी इकडे. नाही, ओव्हरराईड नाही करू शकत आहे. ओके, नाउ व्हाय, बट व्हाय? Why cannot override? इथपर्यंत आलो तर एवढं तर समजलं तुम्हाला? हॅलो स्टुडंट्स. Yes, sir. See, now if I'm writing here, string, and I'm giving the this particular value, I have initialized it. Now if I'm accessing it in subclass मध्ये, if I'm accessing it, right, then I'm getting this, but it is not allowing me to override the variable. Why? That is what my answer is. So if I'm saying abstract जर का लिहिलं मी, तर मग देतोय का तो? लेट्स फाइंड इट आउट. लेट्स फाइंड इट आउट. लेट्स सी दिस. ॲब्स्ट्रॅक्ट केलं तर देईल का? नाही, ॲब्स्ट्रॅक्ट केलं तरी पण देत नाहीये. So I think I will check it why it is not. There are a lot of versions are there ना, जावाचे बरेच वर्जन्स आहेत आणि बरंच नवीन नवीन काय काय होते. सो दॅट्स वाय इट इज नॉट गिविंग मी द चान्स टू ओव्हरराईड दिस. राईट, ॲक्च्युली ओव्हरराईड करायला द्यायला पाहिजे होतं, बट इट इज नॉट ओव्हररायडिंग इट. सो आय हॅव टू चेक व्हॉट इज द थिंग दॅट हॅज हॅपन. कॅन आय हॅव द स्टॅटिक? इफ इट इज स्टैटिक, हो गया. दो मिनट. हाँ बैठो ना, हो गया. हाँ, सेकंड ईयर HTC. हाँ मेरा हो गया लेक्चर. नहीं हो गया ना, बैठो बैठो. स्टॅटिक नॉन स्टॅटिकचा काय फरक पडत नाही आहे. ठीक आहे, आपण बघूया काय ते. हां, जस्ट सीट. इकडे पण आपण चेक करूया कुठे आपल्या याच्यामध्ये की बाबा काय देतो प्रॉब्लेम. व्हेरिएबलला काय प्रॉब्लेम आहे? आय हॅव टू जस्ट चेक व्हेरिएबल. अदरवाइज दिस इज करेक्ट. दिस आय डोंट वॉन्ट एनिथिंग लाईक दिस. दिस इज ऑल्सो फाईन. व्हेरिएबलचं काय आहे?
ठीक है, let's say take it in the next class. Okay, is there any doubt now, students, up till now? Jayesh, Nasha के after class में, yes, any doubt? Aditya, नो सर बट any doubt? स्नेहा, काय डाऊट आहे? नो सर. काय करणार सर विचारेल नंतर सर. हा चालेल चालेल. ऍक्च्युली पण हे समजलं का, म्हणजे जनरलायझेशन स्पेशलायझेशन कळलं का? सी दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट ना, खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे आणि हा कन्सेप्ट आपल्याला खूप मोठं काय काय शिकून जातो, राईट? यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ लँग्वेज, आफ्टर दॅट लँग्वेज डझंट मॅटर वेदर यू शिफ्ट टू द नोड.js और यू शिफ्ट टू द पायथन और कोणत्या पण दुनियाभरच्या कोणत्या पण लँग्वेजला जा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राईट? दिस कन्सेप्ट आर नॉट गोइंग टू चेंज ॲट ऑल, बिकॉज अल्टिमेटली यू आर गोइंग टू डिझाइन द प्रोजेक्ट. डिझायनिंग मध्ये या सगळ्या गोष्टी येतात. विच क्लासेस आर पॅरेंट, विच क्लासेस आर चाइल्ड, विच क्लासेस आर रेग्युलर क्लास, विच क्लासेस आर इरेग्युलर क्लास, विच क्लासेस आर irrelevant class, that all this type of things that you have to handle it. आणि नंतर मग तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचा असतो, कळलं का नाही? डायरेक्टली प्रोजेक्ट करायला नुसतं क्लास स्टुडंट, क्लास टीचर, चला हा सब क्लास, हा बेस क्लास आणि काहीतरी पॅरामीटर एक्सेप्ट करायची, त्याला काहीच अर्थ नाही, कळलं? इट शुड मेक एनी सेन्स आला पाहिजे की बाबा का तुम्ही पॅरेंट क्लास बनवतायत, का सब क्लास बनवतायत, कळलं का नाही? बाकीचं सिंटॅक्स अँड एव्हरीथिंग इज सेम. आय विल ऑल्सो गेट दिस थिंग विदिन 1 or 2 minutes. आय विल सर्च ऑन इट व्हेरिएबल. तुम्ही पण सर्च करा अँड लेट्स मीट ऑन थर्सडेला बघूया. अँड इवन इफ यू गॉट एनी टाइम टुमॉरो, डे आफ्टर टुमॉरो, राईट, प्लीज कॉल मी. आदित्य, येस सर. हा, मला कधी पण तुम्ही सांगा, प्लीज कॉल मी, बिकॉज वी हॅव टू टेक लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस. ओके ओके सर. ओके, चलो, थँक यू. सो आय एम स्टॉपिंग दिस रेकॉर्डिंग. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास.